हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटे कल ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ है ना। अपना कंप्लीट नहीं होया सीगा क्योंकि मैंने लग्या सीगा कि बहुत ज़्यादा फिर समझ नहीं आना, दैट इज़ वाई। तो आप ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मैंबरेन कर रहे सीगे, ਉਹਨੂੰ मैं एक बार फिर दस दिया। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मैंबरेन, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਕਟਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਟ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ATPs, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ नो एक्सपेंस ऑफ ATP, ठीक है, जो अपने आप। फिर अपन ने पैसिव ਨੂੰ डिस्क्राइब करना स्टार्ट ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਿੰਪਲੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ। ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ from the region of their higher concentration to region of their, ਆਪਾਂ membrane नहीं draw ਕਰਦੇ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿ this is the water and ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਨਾ ATP ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੇ ਇਹਦੀ concentration ਹਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ, that is called as diffusion। डिफ्यूजन ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਫਿਊਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿੜਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ, that is diffusion। ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਲਾਵਰਸ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁਝ ਫਲਾਵਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ that is डिफ्यूजन, ठीक है। जो भी फ्रेग्रेंसेस अपने आप फ्रॉम द रीजन ऑफ फ्रेग्रेंसेस नहीं मॉलिक्यूल्स, रीजन ऑफ देयर हायर concentration to the region of their lower concentration जान, that is diffusion, not by the expense of the ATP, not they do not require the kind of the membrane, ठीक है। हुन osmosis सेकंड अपन ने कितना सीगा osmosis। osmosis से अपन ने क्या सीगा वाटर दे मॉलिक्यूल्स दी मूवमेंट हुंदी है, और वी कैन से द रीजन सेम डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, लोअर क्लासेस च आप सेम लिखते हैं कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। आप एवं भी कह सकते कि वाटर दे मॉलिक्यूल्स दी मूवमेंट, फिर दैट इज द ऑस्मोसिस। इनू आप तीन तरीके दे नाल पढ़िया सीगा, we can say is endosmosis। अपन ने तीन तरह के सॉल्यूशंस पढ़े सी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिदे अंदर अपन ने एक सॉल्यूशन है, ਉਹਦੇ ਮੈਂ सेल रखिया, एक RBC सेल है, रेड ब्लड सेल है, एक सॉल्यूशन है, ਉਹਦਾ सॉल्यूशन ਦੇ ਅੰਦਰ आयंस ਦਾ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ RBC ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ आयंस ਦਾ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, मतलब ਇਹਦੇ साइटोप्लाज्म ਦਾ दोनों सेम है, तो कोई आयन अंदर नहीं जाऊगा, कोई आयन बाहर नहीं आऊगा, देयर विल बी नो मूवमेंट, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। फिर अपन ने पढ़िया सीगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक दे अंदर की सीगा कि जेड़ा मेरा सेल है ओदे अंदर आयंस दी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो बाहर घट है, वाटर दे मॉलिक्यूल्स बाहरों दी अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जिदे करके सेल है जेड़ा ओ स्वेल होके बर्स्ट कर जूगा आफ्टर सम टाइम, ठीक है। दैट इज द एंडोस्मोसिस, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਈਪੋਟੋनिक, ठीक है। उस तो बाद ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਸੀ हाइपरटोनिक कि अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बाहर घट है, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਸੈੱਲ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਪਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 7th 8th 9th 10th ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ, ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ, ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ। 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ कि आप लोअर क्लासेस के अंदर ਜਿਹੜਾ पोटैटो ते या किशमिश के उपर मैं क्या सीगा कल कि एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाते हैं। फिर इत्थे मैं एक कंसेप्ट कल होर दस्सिया सीगा, दैट वाज प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस
ਹੁੰਦਾ है बेटे, जिवें मान लो हाइपरटोनिक सोल्यूशन दे अंदर मैं किसी सेल नू रखिया तो मेरे कोल अस हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, अ सेल है। तो प्लाज्मोलाइसिस की हुंदा है, ਇਹਦਾ ਸੈਲ ਦਾ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਐਵੇਂ। फिर उस तो बाद इन्हें कंप्लीटली ए श्रिंक होना ही स्टार्ट हो गया, ठीक है, द साइटोप्लाज्म दैट इज प्लाज्मोलाइसिस। ਇਹਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦਾ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋਣਾ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਾइसिस, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੂਗਾ, दैट इज डी प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। दो छोटियां छोटियां डेफिनेशंस ने बेटे अपने कोल, ता प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੂੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, दैट इज प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੂੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਫੈਲ ਜੂਗਾ, दैट इज कॉल्ड एज डी प्लाज्मोलाइसिस। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਇਹ ਬੇਟੇ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਪੈਸਿਵ, ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਐਂਡ ऑस्मोसिस ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਿਡ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ। ਪੈਸਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਰਡ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਿਡ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ। ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਿਡ वर्ड तो ही क्लियर है, मतलब किसी की हेल्प ਦੇ ਨਾਲ ट्रांसपोर्ट होना, अपने आप ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, कोई चीज, कोई मॉलिक्यूल, कोई हेल्पर ਉਹਨੂੰ फैसिलिटेट करूगा, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, दोबारा फिर लिख रही हूं मैं, नो एक्सपेंस ऑफ एटीपी, जो ट्रांसपोर्टेशन बिना एटीपी ਦੇ एक्सपेंस ਤੋਂ अपने आप ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ क्रॉस आयंस ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇ, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। तीन तरह ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की है, मान लो जी आ एक सेल है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਨਸ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ऑस्मोसिस की कहती है कि वाटर दे मॉलिक्यूल्स दी मूवमेंट होना अकॉर्डिंगली, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, दैट इज ऑस्मोसिस। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, थर्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ कुछ प्रोटीन्स पढ़े सीगे। उन्हां प्रोटीन्स दे अंदर दो तरह के प्रोटीन्स हुंदे ने। वी हैव इज द कैरियर प्रोटीन्स, वन फर्स्ट कैरियर प्रोटीन्स। सेकंड अपने कोल वी हैव इज द सेकंड टाइप ऑफ द प्रोटीन्स आर देयर, जिन्हों आप कह देने चैनल कैरियर प्रोटीन्स कह देने। वन वी हैव इज द कैरियर एंड अदर अपने कोल है बेटे चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। चैनल प्रोटीन्स हुंदे ने सेकंड अपने कोल, ठीक है, कैरियर और चैनल। हुण हुंदा की है बेटे, मैंब्रेन दे अंदर आपां ने कुछ बड़े बड़े प्रोटीन्स पढ़े सी, जिन्हों आपां ने क्या सीगा, टनल प्रोटीन्स क्या सीगा, ठीक है। टनल प्रोटीन्स की करदे ने, वी हैव इज टनल प्रोटीन। आ मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं मैं, ठीक है। चैनल आ मेरे कोल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के अंदर आ बाई लेयर बन रही है, दिस इज बाई लेयर फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। इथे मैंने एक चैनल बनाता, दिस इज वन चैनल प्रोटीन। ये अगे सेम फॉस्फोलिपिड्स ऊपर नीचे सेम प्रेजेंट। कोई भी मॉलिक्यूल है जिसका ट्रांसपोर्ट होना है, ठीक है। तो मेरे कोल कुछ मैं मॉलिक्यूल्स बनाए, उन्होंने इधर जाना है,
तो एक टनल है ना जी, ये अंदर टनल है, टनल प्रोटीन के अंदर टनल है, चैनल बन रहा है एक, तो ये मॉलिक्यूल्स इस चैनल के थ्रू, ये चैनल ओपन होगा एंड ये मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाएंगे। चैनल विल अलाउ देम टू मूव इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है। सेल दे साइटोप्लाज्म के अंदर जिहड़ा चैनल है वो खुलिया ते उस चैनल दे थ्रू वो प्रोटीन्स अंदर चले गए, वो मॉलिक्यूल्स अंदर चले गए, ठीक है। तो अपने कोल चैनल प्रोटीन्स दे अंदर अपने कोल की आ गया, वी हैव इज जो बहुत सारे एंजाइम्स ने जो कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दे अक्रॉस कुछ इस तरीके दे नाल इन्हां चैनल्स दे थ्रू पास हो जाते हैं। मतलब एक इस तरीके दे नाल मेम्ब्रेन दे अंदर बहुत तरह के प्रोटीन्स ने, ये प्रोटीन है, ठीक है, ऊपर कोई मॉलिक्यूल है इत्थे प्रेजेंट है, वो नीचे साइटोप्लाज्म च जाना चाहता है, तो ये चैनल इस तरीके दे नाल उन्हें जगह दिंदा है, वो मॉलिक्यूल्स इहदे अंदरों दी चले जाते हैं, कुछ एंजाइम्स इस तरीके दे नाल मूव करते हैं, तो वी हैव इज द फैसिलिटेटेड। कुछ कैरियर प्रोटीन्स ने जिवें कि अपने कोल ने परमीएजेस, ਉਹ ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटीरियल्स ਨੂੰ बिना सैल दी एनर्जी दे यूज किते दूसरी डायरेक्शन दे अंदर पास ऑन होन दिंदे है, ठीक है। जिवें कि ग्लूकोज दी कॉन्सेंट्रेशन कुछ इस तरीके दे नाल डाउनहिल जांदी है, ठीक है। डाउनहिल मतलब अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन तो दूसरी कॉन्सेंट्रेशन वाल जाना। हुण मेरे कोल कैरियर्स, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ बेटे, ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਰਿਸੈਪਟਰ ਸਾਈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਡਾਊਨ ਦਾ ਸਾइटोप्लाज्म ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਵੇਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, फिर नीचे चला गया मॉलिक्यूल, ठीक है, नीचे साइटोप्लाज्म है, ये कुछ इस तरीके दे नाल मूवमेंट दिंदा है, दैट इज द फैसिलिटेटेड। कोई ओ मॉलिक्यूल लिपिड्स दे थ्रू नहीं पास हो सकते सीगे, ओ प्रोटीन्स दे थ्रू जा सकते सी, तो लिपिड्स ने उन्हां मॉलिक्यूल्स नू अलाउ नहीं किया, क्योंकि कुछ आयन्स कुछ स्ट्रक्चर्स बड़े साइज दियां ने, उन्हां नू लिपिड्स ने जेड़े ओ अलाउ नहीं कर रहे कि तुसी साडे चों होके जाओ। डिफ्यूजन तो छोटे मॉलिक्यूल्स नहीं होगी, ऑस्मोसिस भी होगी, वाटर दे मॉलिक्यूल्स नहीं होगी, लेकिन बाकी सबस्टेंसेस ने जेड़े ओ किवें जाणगे, ग्लूकोज है जेड़ा तो उहदे जाण लई फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन विल बी देयर। जेड़े ए मेरे प्रोटीन्स ने, टनल प्रोटीन्स ने, जेड़े मैम्ब्रेन दे अंदर इंटैग्रल प्रोटीन्स ने, उन्हां इंटैग्रल प्रोटीन्स चों कुछ प्रोटीन्स बड़े साइज दे ने, उन्हां चों कुछ प्रोटीन्स दे अंदर तां चैनल प्रेजेंट हुंदा है, मॉलिक्यूल्स उस चैनल दे थ्रू पास हो जाते हैं, बट कुछ प्रोटीन्स दे अंदर चैनल नहीं प्रेजेंट हुंदा, उन्हां दे कोल कैरियर प्रेजेंट हुंदा है। तो जदों उस कैरियर दे उपर, जदों उस रिसेप्टर दे उपर मॉलिक्यूल आके लग्या, तो नीचों दी उहदे कोल एवें दी पावर हुंदी है कि वो अपनी स्ट्रक्चर दे अंदर चेंजेस करदा है, ते वो मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म दे अंदर डाउनवर्ड चला जाता है, ठीक है। तो अपने कोल इस तरीके की जिहड़ी मूवमेंट है, चैनल जिहड़ा है कुछ एंजाइम्स दे अंदर, ग्लूकोज दा जिहड़ा मूवमेंट है, आयन्स दा जिहड़ा मूवमेंट है, जो बड़े आयन्स ने उन्हां दा मूवमेंट किवें हुंदा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दे थ्रू हुंदा है, जिहदे अंदर आगे अपने कोल कुछ इस तरह के चैनल्स या कैरियर्स प्रेजेंट हुंदे ने, वो चैनल्स या कैरियर्स बिना एटीपी दे एक्सपेंस तो मॉलिक्यूल्स नू पास करन च अपनी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इस तो बाद बेटे अपने को एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन किवें होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन वो ट्रांसपोर्टेशन है जो होनी भी चाहिए है, बट ओदे लई सेल एनर्जी मंगदा है, ठीक है। सेल नू की चाहिए है, कुछ एनर्जी चाहिए है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इत्थे भी एस्टैब्लिश होगा सेम वे दे अंदर, जिवें फॉर एग्जांपल अपने कोल की है कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस दा ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। जिवें एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है तो जेडे अपने इंटेस्टीन दे सेल्स ने उन्होंने ग्लूकोज, अमीनो एसिड
एसिड्स ने जिहड़े उन्हां नूं एब्जॉर्ब करना है या उन्हां चों जिहड़े आयन्स ने उन्हां ब्लड ने एब्जॉर्ब करने ने, तां एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है जिहड़ा वो इंटेस्टीन दे अंदर जिहड़ा है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, किडनीज दे अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करता है, दैट इज एट द एक्सपेंस ऑफ द एटीपी। फॉर एग्जांपल आ मेरे कोल सेम वे दे अंदर आपां प्लाज्मा मैम्ब्रेन ड्रॉ करते, दो मैम्ब्रेन्स ने, वही मेरे फॉस्फोलिपिड्स ने। आ मेरे कोल मेरा चैनल प्रोटीन है, ठीक है, टनल प्रोटीन है, इंटीग्रेटेड प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन्स दे ऊपर ना कुछ गार्ड सेल्स प्रेजेंट हुंदे ने, ठीक है। इत्थे एक आयन आया, सोडियम आयन आया, ये कहंदा मैं अंदर जाना चाहना, ठीक है, ये कहंदा मैं तेनू जान नहीं दूंगा। गार्ड ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ what do you require, ਤਾਂ ਗਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ATP ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ ਇਹਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ATP ਆਇਆ, ATP ਦਿੱਤਾ, ATP ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੀਚੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਨ ਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। इस तरीके का जिहड़ा मूवमेंट हुंदा है विच इज एट द एक्सपेंस ऑफ द ATP, जो अपनी बॉडी के अंदर जिहदा यूसेज कित्थे है, मैं हुणे दस्सिया इंटेस्टीन दे अंदर है, किडनीज दे अंदर है। किडनीज एक्टिवली टेक अप द आयंस एंड ग्लूकोज फ्रॉम द फॉर्मिंग यूरिन, तां उदों ओ की करदे ने ATP दे एक्सपेंस ते, मतलब किडनीज दे अंदर आपां एक्सक्रीटरी सिस्टम च पढ़ांगे की हुंदा है कि पहला सारे आयन्स यूरिन दे अंदर चले जाते हैं, फिर किडनी वापस उन्हां चों जिहड़े आयन्स बॉडी नूं चाहीदे हुंदे ओह वापस उन्हां नूं लैंदी है। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ATP ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਇਨਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। दैट इज द सॉर्ट ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो बॉडी ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬॉडी ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨਸ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ किथे जाना, सैल तो बाहर जाना, ते पोटेशियम आयंस दा सैल दे अंदर जाना, इहदे अंदर भी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है। सोडियम पोटेशियम पंप आपां बहुत डिटेल च पढ़ांगे, किथे पढ़ांगे, नेक्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी दे अंदर पढ़ांगे बेटे, मसल कॉन्ट्रैक्शन वाले मैकेनिज्म दे अंदर पढ़ांगे, ठीक है। तो दैट इज सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप्स ने जिहड़े ATP दे एक्सपेंस दे नाल जदों आयंस दी मूवमेंट होए, बिना ATP दे एक्सपेंस तो आयंस दी मूवमेंट ना होए, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन दे अंदर आ गया the transport which occurs at the expense of the ATP molecules, ठीक है। हुण बेटे कुछ होर अपने कोल मैम्ब्रेन दियां किने स्पेशलाइजेशंस ने जिन्हों आपां तीन डेफिनेशंस च पढ़दे हां। वी हैव इज फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। फेगोसाइटोसिस हुंदा है मैम्ब्रेन दा कुछ एनगल्फ करना, फैगो मतलब खाना, सॉलिड पार्टिकल्स नू खाना, दैट इज फैगोसाइटोसिस। मान लो जी आ एक मैम्ब्रेन है, इन्हें किसी सॉलिड पार्टिकल नू देखिया, जिवें आपां अमीबा च पढ़दे हां, तां ये सॉलिड फूड दा ड्रॉप इहदे सूडोपोडियाज अगे गए, मैम्ब्रेन दी खासियत है ना ये भी, तां सूडोपोडियाज ने इस ड्रॉपलेट नू अपने अंदर ले लिया, ठीक है। मैं डायग्राम क्लियरली एक बारी होर बना के दिखानी हां, देखो बेटे, I have is, मान लो this is a solid food particle, आ एक membrane है, ठीक है, अमीबा दी membrane है। इन्हें की किता डायग्राम 2 दे अंदर, इन्हें अपने सूडोपोडियाज नू उस ड्रॉपलेट दे उस फूड मटीरियल दे अराउंड इंक्रीज किता ते इस फूड मटीरियल नू अपने अंदर वेसिकल दी फॉर्म च ले लिया। फेगोसाइटोसिस, खाना, सेल ने अपनी मेम्ब्रेन दे अंदर चेंजेस लाए ते वो अंदर चला गया। पिनोसाइटोसिस, जेकर इत्थे वाटर दे ड्रॉपलेट्स होन, सॉलिड दी बजाय वाटर ड्रॉपलेट्स नु सेल सेम मैकेनिज्म दे नाल अंदर ले जे, तो दैट इज सेल ड्रिंकिंग। फेगोसाइटोसिस इज सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस इज सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। जदों आपां लिक्विड दे मॉलिक्यूल्स नु अंदर लेके जाने आ, ठीक है, तो इहनू एंडोसाइटोसिस भी कहंदे आ, अंदर लेके जाना।
एक्सोसाइटोसिस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ, ਆ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨੇ ਇਸ ਆਹੀ ਵੈਕਿਊਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਸਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵੈਸੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਸੀਕਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਪਚਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇਗੀ, that is exocytosis। ਤਾਂ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਸੈਲਸ ਦੀ ਖਾਣ ਚ ਵੀ ਤੇ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣ ਚ ਵੀ, ਤਾਂ that is these are also some kind of the functions of the cells, that is the exocytosis, endocytosis as well as पिनोसाइटोसिस। तो सेल मेम्ब्रेन दे होर एक्स्ट्रा फंक्शंस की आगे सूडोपोडियाज प्रेजेंट ने, तो सूडोपोडियल मूवमेंट्स भी सेल मेम्ब्रेन दिंदी है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ द मटीरियल हेल्प कर रही है, सेल नू एक शेप प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। सेल दे जिहड़े एक्सचेंजेस ने उन्हां नू कंट्रोल भी कर रही है। उस तो इलावा यह कुछ सेल्स दे अंदर फैगोसाइटोटिक मूवमेंट्स भी दिंदी है, खान च भी हेल्प करदी। कुछ दे अंदर अनड्यूलेटरी मूवमेंट्स हुंदियां। अनड्यूलेटरी मूवमेंट्स किहड़ियां हुंदियां ने बेटे, जिवें कुछ सेल्स आपां पढ़ांगे अगे। देखो बेटे बायोलॉजी दे मैं अपने कोल सारियां चीज़ां आपां नूं हुणे ही आपां क्लीयर नहीं कर सकदे, क्योंकि हुण आपां डेफिनेशंस कर रहे हैं। जदों आपां पूरा प्रॉपर चैप्टर आऊगा तो आप इन्हों प्रैक्टिकली भी देखांगे। प्रैक्टिकली किवें, उस चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल के नाल मैं तुहानूं दसूंगी कि अनड्यूलेटरी मूवमेंट है, जिवें कुछ सेल्स ने आपां किंगडम एनिमेलिया च बनांगे, कुछ सेल्स एवें ही चलते हैं। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म अपनी सारी बॉडी नूं इकट्ठा करते हैं, उदां दी मैम्ब्रेन इकट्ठी होगी, फिर अगे चले गए, फिर उन्होंने छड्डता। दिस इज द अनड्यूलेटरी काइंड ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। तो दैट इज द अनड्यूलेशन, वेव लाइक जिहड़ा है मोशंस ने जिहड़े वो सेल्स दे अंदर होना। तो हुण आपां लास्ट ते अज दे लैक्चर दे अंदर की कंप्लीट किया, मैम्ब्रेन दे अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन नूं पूरा किया। मैम्ब्रेन दे अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि वो मैम्ब्रेन का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, वो दो तरीके दे नाल ट्रांसपोर्ट करती है, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव जदों एटीपी नहीं लगे, तीन तरीके हो गए, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। हुण अपने कोल सेकंड किहड़ा आ गया, सेकंड मैथड वी हैव इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जदों सेल ने एटीपी का एक्सपेंस किया, जिवें कि सोडियम पोटैशियम पंप इन द बॉडी। बट हजे आपां सिर्फ एग्जाम्पल की है सोडियम पोटैशियम पंप दी। जदों आपां पर्टिकुलरली ह्यूमन फिजियोलॉजी करांगे तो आपां पूरा सोडियम पोटैशियम पंप है जिहड़ा उहदे अंदर आयन्स अंदर किवें गए किवें बाहर आए वो पूरा डिटेल दे अंदर करांगे। तो एवरी चैप्टर इज रिलेटेड विद ईच अदर, केड़ा समान आपां नूं केड़ी नॉलेज है जिहड़ी वो कित्थे काम आ जे। दैट इज वाई आई वाज सेइंग कि आपां बेसिक्स कर रहे हैं हजे। सेल चैप्टर है जिहड़ा वो बेस ऑफ द बायोलॉजी बना दिंदा है, ठीक है। हुण तुहानूं ये पता चल गया कि सोडियम पोटैशियम पंप चलदा है, पर वो कदों करांगे उहनूं डिटेल दे अंदर, जदों आपां ह्यूमन फिजियोलॉजी करांगे, ठीक है बेटा जी। तो now we have is the next, that is the cytoplasm of the cell, next organelle। छोटी सी organelle है, तो आप उन्हें आज ही कवर कर लेने हैं ताकि आप कल नेक्स्ट पार्ट्स करांगे। हुण सेल दा सेकंड पार्ट है, सेल दे आपने तीन पार्ट कहे सीगे ना, जदों आपने प्रोकैरियोटिक सेल किया सीगा तो आपने सेल दे तीन पार्ट कहे सी। केड़े-केड़े तीन पार्ट कहे सीगे, एक मैं क्या सीगा जी सेल एनवेल्प है, ठीक है। सेल एनवेल्प अपने यूकैरियोट दे अंदर भी की कहा, सेल एनवेल्प अपने यूकैरियोट च सेल मेम्ब्रेन च की सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर लिया, सेल एनवेल्प दे अंदर क्योंकि मैं क्या सी सेल वॉल तो वो तो प्लांट च प्रेजेंट है। आप प्लांट वाले पार्ट्स आपां नाल जेडे कॉमन ने पहले आप वही पार्ट्स डिस्कस करांगे, फिर आप सेल वॉल नूं सेपरेटली डिस्कस करांगे। तो सेल मेम्ब्रेन कर लिया, फिर आप इहदे अंदर की पढ़िया सीगा जी साइटोप्लाज्म पढ़िया सीगा, एक आप इहदे अंदर की पढ़िया सीगा न्यूक्लियोइड पढ़िया सी। सेम वे दे अंदर हुण आप इत्थे भी की पढ़ांगे जी साइटोप्लाज्म पढ़ांगे, ठीक है। फिर आप इहदा न्यूक्लियस पढ़ांगे। साइटोप्लाज्म की है, साइटोप्लाज्म सेकंड पार्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन दे अंदर एक कह सकते हो कि एक लिक्विड सैमी लिक्विड तरह का सबस्टेंस है जिदे अंदर जिहदी कंपोजिशन की है, जिदे अंदर सारे
तरह के प्रोटीन्स, आयन्स, फैट्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स प्लस 90% ऑफ द वाटर प्रेजेंट। मतलब सैल नू अपनी प्रोसैसेस करन लई जो जो एंजाइम्स, जो जो वाइटामिन्स, जो जो सबसटेंसेस चाहिए ने वो सब किथे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म दे अंदर प्रेजेंट है। ता ये एक यूकैरियोटिक सेल है, एक एनिमल सेल है। मैं यदि प्लाज्मा मैम्ब्रेन डिस्कस कर ली, मैं क्या कि यदि प्लाज्मा मैम्ब्रेन नू मैं खोलिया, सिंगर एंड निकोलसन ने दसिया सीगा कि ये अंदर फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट ने, ये अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट ने जो कि दो तरह के ने, आउटर प्रोटीन्स एंड इंटैग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, हुण मैं वो सारा पढ़ लिया, मैं मैम्ब्रेन के फंक्शंस भी सीख ले। मैंने कहा कि हाँ भाई मैम्ब्रेन है जी वो मॉडिफाई भी हो जाती है, इंटरडिजिटेशंस बना देंदी है, मैम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी हेल्प कर रही है। मैम्ब्रेन कुछ सैल्स के अंदर फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस भी कर रही है। ठीक है, तो आप सैल मैम्ब्रेन नू पूरा देख लिया। हुण आपां क्या कि सैल मैम्ब्रेन दे अंदर एक सैमी लिक्विड टाइप दा जेल लाइक कंसिस्टेंसी दा एक सबसटेंस है, हर सेल दे अंदर प्रेजेंट है, जिदे अंदर 90% जिदी कॉम्पोजिशन की है 90% वाटर प्लस बाकी सेल दे सारे आयंस, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उस तो इलावा वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स। ठीक है, जो जो एक सेल नू सबस्टेंसेस चाहिए ने वो सब किथे है, इस साइटोप्लाज्म दे अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इस तो इलावा की प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म दे अंदर, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक सेल है। द साइटोप्लाज्म वो सबस्टेंस है बेटे जो कि न्यूक्लियस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड सेल मेम्ब्रेन दे विच प्रेजेंट है, एथे प्रेजेंट है, एथे प्रेजेंट है, एथे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। ठीक है, हुण अपने कोल है बेटे साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म जेड़ा है ओहो। हुण अगर वो न्यूक्लियस दे अंदर है, न्यूक्लियस दे अंदर भी एक लिक्विड प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, आ बाहर साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म ते साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलके की बना देंदे ने प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल बना देंदे हैं। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक मटेरियल है, एक्वस है, ट्रांसपोर्ट जेड़ा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ट्रांसपेरेंट है। ਇਹਦੇ अंदर शुगर्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स, वाइटामिन्स ते ओ सारे सबस्टेंसेस प्रेजेंट ने जो कि एक सेल दियां मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लई जरूरी है। ठीक है, the cytoplasm of the cell consists of all the substances which are required by the cell to complete all its processes। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ साइटोप्लाज्म ਜਿਹੜਾ है ਉਹ विस्कस स्टेट ਦੇ ਅੰਦਰ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सोल प्लस जेल लाइक ਜਿਹੜਾ है ਦੀ कंसिस्टेंसी ਹੁੰਦੀ है ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ जेल लाइक है कंसिस्टेंसी ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ एक्टोप्लाज्म ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ मोर सोल्यूशन है ਜਿਹੜਾ ਉਹ एंडोप्लाज्म। यानी कि देखो जेड़ा एक सेल अब छोटा जा सेल ड्रॉ करिए ताकि मैंने साइटोप्लाज्म बनाना इजी हो जाए। आ एक सेल है, एदा साइटोप्लाज्म है, एदा साइटोप्लाज्म बाहर है जेड़ा वो ज्यादा जेल लाइक हुंदा है, जबकि अंदर है जेड़ा अंदर वाला पासा वो थोड़ा सोल्यूशन टाइप हुंदा है, जेल प्लस सोल। साइटोप्लाज्म दे दो हिस्से होंगे, एक्टोप्लाज्म जो बाहरी हिस्सा है, एंडोप्लाज्म जो सेल दा अंदरला हिस्सा है। मतलब जो सेल दा आउटर सरफेस दे नाल है वो तो मेरा एक्टोप्लाज्म है, जो सेल दे अंदर है वो मेरा एंडोप्लाज्म है। ठीक है, हुन जो मेरा एक्टोप्लाज्म है वो मेरा जेल लाइक फॉर्म बनांदा है ते जेड़ा मेरा एंडोप्लाज्म है वो मेरा सॉल्यूशन या सोल लाइक कंसिस्टेंसी, लिक्विड ज्यादा होना ते बाहर जेल ज्यादा होना, मतलब ज्यादा
स्टिफ जेल की तरह होना, दैट इज द जेल लाइक कंसिस्टेंसी ऑफ द साइटोप्लाज्म। हुन साइटोप्लाज्म के अंदर सेकेंड की है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स होंदियां ने, बिल्कुल स्लो मोशन के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर मोशन हो रहा है, ताकि ਉਹਦੇ अंदर आयन्स, शुगर्स, मॉलिक्यूल्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, जो सबसटेंसेस मैटाबॉलिज्म ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹ अपने सारे ऑर्गेनल्स ਨੂੰ डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲੋਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਆਟੋਨੋਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਦ ਸਾइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइकलोसिस और स्ट्रीमिंग मूवमेंट। ठीक है, तो अपने को साइटोप्लाज्म का फंक्शन की हो गया, साइटोप्लाज्म है जिहड़ा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂसेस प्रेजेंट ने जो कि एक सैल दियां मैटाबॉलिक प्रोसेसेस ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म मैटीरियल्स दी डिस्ट्रीब्यूशन दे अंदर, मैटीरियल्स दी स्टोरेज दे अंदर, स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स दे अंदर, मैटाबॉलिक रिएक्शंस दे अंदर ते इंटर ऑर्गेनल एक्सचेंजेस दे अंदर हेल्प करता है। ध्यान नाल सुनो, दोबारा दस रही हाँ, साइटोप्लाज्म दे फंक्शंस की ने। साइटोप्लाज्म इन्ना ही है बेटे, साइटोप्लाज्म की है एक लिक्विड लाइक, जेल लाइक, ट्रांसपेरेंट, और वाटरी, नॉट वाटरी, दैट इज द सबस्टेंस। ठीक है, जेल लाइक सबस्टेंस है जिहदे दो पार्ट ने, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। एक्टो मतलब जो बाहर वाले सिरियां च प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्म जो अंदर है, जो बाहर है वो ज्यादा जेल है, मोर जेल लाइक है, जो अंदर है वो घट जेल है, दैट इज मोर लाइक सोल्यूशन। ठीक है, उस तो इलावा साइटोप्लाज्म के अंदर की है, वो सारे सबसटेंसेस ने 90% वाटर के नाल, वो सारे सबसटेंसेस ने जो कि एक सैल दे मैटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर हेल्प करनगे। तो साइटोप्लाज्म के फंक्शंस की ने? फर्स्ट फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज, साइटोप्लाज्म के अंदर क्योंकि मैटाबॉलिक सबसटेंसेस प्रेजेंट ने, तो ये सैल दियां मैटाबॉलिक रिएक्शंस दे अंदर हेल्प करता है। ये जगह भी दिंदा है ते मॉलिक्यूल्स भी दिंदा है। ये कहंदा है जिवें सैल दी बेसिक प्रोसेस आपां पढ़ के आए, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कित्थे हो रहा है? वो तो न्यूक्लियस च हो रहा है, लेकिन ट्रांसलेशन प्रोटीन्स कित्थे बन रहे ने? साइटोप्लाज्म च बन रहे ने। तो बेसिक मैटाबॉलिक रिएक्शंस होण लई समान भी दिंदा है, लो भी तुसीं आप समान भी लो ते तुसीं मेरी जगह भी लो। तो ये मैटाबॉलिक रिएक्शंस कित्थे हो रही ने? सैल दे साइटोप्लाज्म दे अंदर। सैल बहुत सारे सबसटेंसेस दी डिस्ट्रीब्यूशन दे अंदर कि जिन्हों जो चाहिदा है वो इत्थे मेरे वाइटामिन सारे प्रेजेंट ने दे अंदर, मेरे जेड़े ने वो सारे ग्लूकोज प्रेजेंट है, मेरे अंदर वाइटामिन्स प्रेजेंट है, तो डिस्ट्रीब्यूट भी करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नूं आ चाहिदा तू आ ले ले, साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नूं जो चाहिदा है ओनू भी दे दिंदा। तो सारे सबसटेंसेस दी डिस्ट्रीब्यूशन दे अंदर भी हेल्प करता है। ठीक है, उस तो इलावा इंटर ऑर्गेनल एक्सचेंज, इंटर ऑर्गेनेलर एक्सचेंज। मान लो माइटोकॉन्ड्रिया ने सेल दे अंदर एटीपी बनाए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इन्हें एटीपी बनाए, ये एटीपी कला माइटोकॉन्ड्रिया ही थोड़ी ना रखूगा। मान लो ये एटीपी मेरे गोल्जाई बॉडी नूं या किसी होर ऑर्गेनेली नूं चाहिए है, तो ये इनू दे दूगा, पर वो दऊगा किवें? पहला वो एटीपी निकल के साइटोप्लाज्म जाएंगे, फिर वो साइटोप्लाज्म जो इत्थे जाएंगे। तो इंटर ऑर्गेनल एक्सचेंजेस के अंदर भी हेल्प करता है। इस तो इलावा ये अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स यानी कि साइकलोसिस भी हुंदी है, एक घूम घूम के सारे सबसटेंसेस नो डिस्ट्रीब्यूट कर दिंदा है। ठीक है, इस तो इलावा ये एनवायरनमेंट दे नाल भी एक्सचेंजेस करता है, जो सेल्स एनवायरनमेंट दे नाल कॉन्टैक्ट च ने, ह्यूमन दे होर ऑर्गेनिजम्स दे, तो साइटोप्लाज्म एनवायरनमेंट दे नाल एक्सचेंजेस दे अंदर भी हेल्प करता है। हेल्प्स इन द एनवायरनमेंटल एक्सचेंजेस, जिवें मैं हुणे फेगोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस दसिया, तो जिवें अमीबा लाइक सैल्स ने तो एनवायरनमेंट दे नाल कॉन्टैक्ट बनाओ, भी तो यूकैरियोटिक सैल्स ही ने ना, तो एनवायरनमेंट चो ही लै रहे ने, एनवायरनमेंट च वापस अपनी एक्सक्रीशन दे रहे ने, तो एनवायरनमेंटल एक्सचेंजेस दे अंदर भी हेल्प कर रहे हैं। इस तो इलावा कुछ सबसटेंसेस दी स्टोरेज दे अंदर भी
हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स आल्सो, ठीक है। जिमें कि कोई भी मॉलिक्यूल्स ने, कोई सबसटेंसेस ने, कोई डाइज ने, उन्होंने अपने अंदर वैक्यूल्स बना के या सैल इनक्लूजन्स बना के अपने अंदर स्टोर करके रख लेंदा है, ताकि फ्यूचर च जो लोड़ होई, जिवें फूड वैक्यूल्स पढ़े सी आपां ने, ठीक है, वो आपां प्रोकैरियोट च पढ़े सी, यूकैरियोट च भी पढ़ांगे, तो स्टोरेज ऑफ द मटीरियल्स के अंदर भी हेल्प करता है, ठीक है। तो यह हो गया बेटे साइटोप्लाज्म। हुण आपां पढ़ांगे साइटोप्लाज्म के अंदर जो जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हुंदियां ने, वो ऑर्गेनेल्स पढ़ांगे आपां नाल दी नाल, बाकी साइमल्टेनियस क्लासेस के अंदर पढ़ांगे सारिया ऑर्गेनेल्स। तो अज आपने अपना मैम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्टेशन पूरा कर लिया, प्लस अपना साइटोप्लाज्म कंप्लीट हो गया। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होए बेटे, यू कैन ड्रॉप मी द मैसेज, यू कैन कॉल मी, जिमें भी तुहानू ठीक लगे, ठीक है। और आप डाउट सैशन रखांगे जूम ते ही, तो इत्थों तक अपना चैप्टर है जो उन्होंने प्रॉपरली रीड कर लो, ताकि थोड़े को जूम सैशन के अंदर डाउट्स प्रॉपर होन, ठीक है, पूछन लई। ताई जूम सैशन का बेनीफिट होगा ना, जे डाउट्स होंगे तो। अगर डाउट्स ही नहीं होंगे देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सच काइंड ऑफ द सेशंस, ठीक है। तो यू कैन आस्क मी योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।